All of you can see? Yes, sir. Yeah. First of all, I want to, say about what are the basic difference between 8085 and 8086. And if you am talking about the your previous versions of mobile and now updated version of mobile, there are some differences there. Some difference in the sense of some difference of various kind of things. Maybe in a memory, maybe in a all those things are updated. So with the help of this updated, features, we are creating some mobile phone or something like that. Similarly, in 8086, we have some advantage with respect to 8085. That's why it's coming in the market. The so what are the advantage in 8086 with respect to 8085? क्या क्या इसमें चेंज आया, इसके चलते ये आया, नहीं तो 8085 ही चलता था, तो 8086 का जरूरत ही नहीं था. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो क्या क्या चेंजेस मैंने पहले भी बोला था, मगर आज और भी कुछ चेंजेस बोलूंगा. जैसे मेमोरी के हिसाब से देखा जाए तो मेमोरी with respect to the memory, if I am talking about the memory, then memory is higher with respect to 8085. मेमोरी में 8085 में कितना था सर? सर 64 KB. हाँ बोलो. 64 KB. 8085 is 64 KB. Okay. 8086 में this is nothing but a 1 MB already described. So मेमोरी के हिसाब से देखा जाए तो कुछ तो चेंजेस आया, कुछ तो ज्यादा हुआ, राइट. नेक्स्ट, एड्रेस पास के हिसाब से देखा जाए, so in 8085, if I'm talking about the 8085, if I'm talking about the 8086, address bus is 16 bit. Over here it is 20 bit. What about the data bus? 8 bit. 8 bit. And over here 16 bit. Clock frequency means depend upon the speed, 3 to 5 megahertz, and it's a 5 to 10 megahertz. Is it clear? Yes, sir. So next, sir, these are the changes is there. Another is a very important change. This the 8086 support pipelining architecture. Support pipelining architecture. What is the pipelining architecture? I already explained you. So pipelining architecture support by 8086, but not support by 8085. Another is a very important thing is that there is a maximum mode and minimum mode. What is the maximum mode and what is the minimum mode? It's a very, very important maximum mode and minimum mode. Maximum mode means when there are 2, 3, 4, 5 or number of microprocessor, that is 8086 working together. Working together means, sir, अभी इस क्लास में टीचर कौन है? Master is the one, only one, that is me. It's called 8085. It's a call 8085. सर लैब क्लास में कितना जन टीचर रहता है? 2 टीचर रहता है. कभी कभी 2 तो रहता ही है, कभी कभी 3 भी रहता है, कभी कभी 1 भी रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, मगर 2 तो रहता है ना. So both are the teacher. In this case, it's called a maximum mode. Maximum mode means more than one processor working together. एक साथ 2, 3, 4 मिलके काम कर सकते हैं. 8086 में पॉसिबल है, 8085 में पॉसिबल नहीं था. 8086 वर्किंग ओनली alone, अकेला काम करता है, वो दूसरे के साथ काम नहीं कर सकता. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, So, sir. 8086 cannot work alone. Can be worked alone or it can be worked in a group, but 8085 only worked in alone. So 8085 के पास कोई min mode max mode बोल के कुछ नहीं था, मगर 8086 के पास
मीन मोड एंड मैक्स मोड है। ओके, मीन मोड एंड मैक्स मोड दोनों ही है 8086 के लिए, मगर 8085 के लिए वो तो नहीं था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. अभी मीन मोड किसको बोलेंगे? जब वो अकेला ही काम करेगा, जब कोई सिस्टम में एक ही 8086 है, उसके टाइम में सिर्फ हम लोग मीन मोड में ही काम करेगा। जब व्हेन अ माइक्रोप्रोसेसर working 8086 working with a more than one IC, maybe 2, maybe 3, maybe 4, maybe 5, then it's called max mode। then it's called max mode। तो डिफरेंस क्या है मैक्स मोड के साथ मीन मोड का? मैक्स मोड में बहुत सारा और एक के ज्यादा 8086 कैन वर्क, बट मीन मोड में ओनली वन 8086 कैन वर्क। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Sir, one more time, sir, please. अच्छा, Sir, max mode. max mode means more than one 8086 will be worked। मतलब एक टीचर नहीं रहेगा, 2-4 मास्टर रहेगा। इसके लिए इसको नाम है मैक्सिमम मोड। मैक्स मोड मतलब मैक्सिमम मोड। मैक्सिमम मोड में 808 मोर देन वन 8086 कैन वर्क टुगेदर, बट मिनिमम मोड में ओनली वन 8086 कैन बी वर्कड, राइट? Okay, sir. मतलब 2, 3, 4, 5 8086 can work together, it is called maximum mode, and minimum mode means only one 8086 can work। is it clear? Yes, sir. so maximum mode में हमारा एक से ज्यादा 8086 can work, minimum mode में only one 8086 can work। is it clear? Yes, sir. Clear, sir. 8 number of pins, देखो अभी स्लाइड में देखो, 8 number of pins, total 40 pins is there, 8 number of pins like 31 to 24 or 24 to 31। ये जो 8 पिन है, दो नाम में काम करता है। ये नाम जो है RQ/GT0, RQ/GT1, log bar, all are working in a maximum mode, where is a hold, HLDA, write, aim/IO bar, DT/R bar, den, ALE, INTA, all are working in a minimum mode। all are working in minimum mode। so in minimum mode working with a different name, maximum working with a different name। there is a 8 pin is there, these are the 8 pins 24 to 31। is it clear? क्या फंक्शन है हम बाद में आ रहे हैं। देखो ऊपर में लिखा हुआ है, दिस इज द मैक्स मोड, मतलब ये जो पिन है मैक्स मोड, एंड मीन मोड के लिए ये नाम है। बाकी अनदर जो 32 पिन्स है वो मैक्स मोड के लिए भी जो है, और मीन मोड के लिए भी एक ही है। इज इट क्लियर? Sir, pin Yes, clear? 24 to 31 मतलब दोनों में वर्क कर सकता है, लेकिन बाकी सारा। अरे तुम्हारा गला कब छीना, पहचाना पहचाना लग रहा है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, उत्सव हियर। तुम्हारा तो नाम काट दिया मैंने। नहीं तो आज से एनरोल फिर कर लीजिए सर। एनरोल तुम्हारा नहीं हो पाएगा, हम तो ठीक है सर। छोड़ दिए हो कॉलेज। नहीं नहीं, आज से फिर एनरोल हो गए सर, अब से रेगुलर रहेगा इधर। हाँ रेगुलर क्लास ही और नहीं होगा, 2-3 में खत्म हो जाएगा, और रेगुलर रह के क्या फायदा। हाँ, क्या बोल रहा था? सर रेस्ट पिन जो हाँ पिन बता रहे थे सर। जो 32 और मिड मोड के लिए भी जो नाम है, मैक्स मोड के लिए भी वही नाम है, मगर मैक्स मोड के लिए ये 24 से 31 डिफरेंट नेम है, मिन मोड के लिए डिफरेंट नेम है। एग्जाम्पल क्या बोले सर? तो इसका फंक्शन भी तो डिफरेंट होगा ना? नेम डिफरेंट फंक्शन भी होगा, डिफरेंट फंक्शन भी होगा। क्या क्या बोले, मान के चलो बॉयज गर्ल्स दोनों है ना, कैसे समझाए एग्जाम्पल। मान के चलो एक क्रिकेट बॉल दिया गया है और तुम अकेले हो, मैंने बोला है तुम खुद से खेलो, क्या करोगे?
कैसे खेलोगे? सर वॉल के अगेंस्ट। बॉल के अगेंस्ट मैंने बॉल फेंकोगे तो तुमको ही लाना पड़ेगा। कोई एक दीवार में मारोगे, तुम्हारे पास आएगा, कैच करोगे, यही तो खेल हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता है। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर, वही वॉल के अगेंस्ट, दीवार पे मार मार कर। दीवार मार मार के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अकेला sir. दूसरा तो कोई है नहीं। ठीक है, अभी इसमें तुम्हारा नोज क्या कर रहा था? जब तुम क्या खेल क्या रहे तो नोज क्या कर रहा था? नोज यानी कि नाक ना सर? हाँ हाँ हाँ, सांस ले रहा था ना? हाँ हाँ सर। सांस ले रहा था। हाँ सर। हैंड क्या कर रहा था? बॉल को थ्रो बॉल को कर रहा था, कैच कर रहा था। कैच कर रहा था। अभी 11 जन आ गया प्लेयर। हाँ 11 जन प्लेयर आ गया, क्रिकेट लगा के, विकेट लगा के, तुम लोग अभी बैटिंग कर रहे हो, कोई बॉलिंग कर रहे हो। अभी नोज क्या काम कर रहा है? वो अपना अभी भी सांस ले रहा है। सांस ले रहा हैं? है। अभी भी सांस ही ले रहा है सर। अभी भी सांस ही ले रहा है, मगर हैंड क्या काम कर रहा है? सिर्फ बॉल कैच कर रहे हैं, बैट भी तो कर रहे हैं। हम्म। कभी कभी थ्रो भी नहीं कर रहा है, कभी कभी खड़ा है विकेट के पीछे और फील्डिंग कर रहा है। मगर तुम्हारा भी हाथ पैर ये सब का काम चेंज हो गया, मगर कुछ कुछ काम पहले जो कर रहा था वो भी कर रहे हो अभी, मगर कुछ कुछ फंक्शंस तुम्हारा चेंज हुआ। हाँ या ना? यस सर। तब जब एक साथ आ गए हो, मतलब मैक्सिमम मोड में तुम्हारा कुछ कुछ हाथ पैर का काम डिफरेंट है, एंड मिनिमम मोड में जब अकेला काम कर रहे थे तब दूसरा है। इज इट क्लियर? क्लियर? यस सर। घर बनाना देखे हो कभी? और एग्जांपल देता है, घर बनाना देखे हो कभी? यस सर। घर बनाना देखे हो। मान के चलो यू आर द हेड मिस्त्री। मिस्त्री मतलब क्या है? जो लेबर का हेड होता है, राइट? इज इट क्लियर? यस सर। तुम्हारा खुद के लिए घर बनाना है, तुम बाहर से आदमी रखोगे? नहीं सर, तुम खुद ही मतलब करोगे? हाँ हेल्प। हर एक दिन 2-2 घंटा करके करोगे, इधर सुबह में और रात में। तुम खुद से हो जाएगा तो क्यों बाहर से आदमी रखोगे? तो इस टाइम में तुमको ईटा कौन ला कर देगा? खुद से सर, वो खुद से। सीमेंट कौन खोल के, मतलब ये बालू के साथ लगा के देगा? खुद से। खुद से। और जब तुम मिस्त्री बन के काम करते हो एक साथ 20 जन मिलके, तब तुम क्या करते हो? तुम ऐसा करते हो कुछ? नहीं सर। तब तो दूसरा आदमी लेकर आता है। तो देखो इधर में भी तुम्हारा ही काम डिफरेंट हो जा रहा है, मिक्स मोड में एंड मिनिमम मोड में। ऐसा ही 8 पिन जो है, इसका डिफरेंट फंक्शन है, मिनिमम मोड के लिए, मैक्सिमम मोड के लिए डिफरेंट फंक्शन है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अभी हम आ रहे हैं एड्रेस बस। कितना बिट का एड्रेस बस है सर? 20 बिट। 20 बिट। 8086 का 20 बिट एड्रेस बस है। नेम क्या है सर? A0 से लेकर A19 तक। A0 से लेकर A19 तक। इज इट क्लियर? नेम इज A0 to A19। ओके यस सर। सर। डेटा बस कितना बिट का है? 16 बिट। 16 बिट। तो नेम क्या होगा सर? D0 to D9 D15 सर। D0 to D15। D15, राइट? यस सर। इसके साथ ना इसका मल्टीप्लेक्स होता है, जो हाँ तैयार होता है उसका नाम हो जाता है AD0 to AD15। क्या बच जाएगा? 4 एड्रेस बस जाएगा। 16 क्या? to 19। A16 to A19। ओके। यस सर, फिर उसमें हम लोग एस लगा। हाँ, इसके साथ हम लोग स्टेटस लाइन ऐड करते हैं, Yes, S3 to S6 को हम बाद में आ रहा है। पहले हम आता है इसका फंक्शंस क्या है। देखो इधर में लिखा हुआ है AD0 to AD15, कोई पिन में लिखा हुआ है AD0 to AD15।
मिला है कि नहीं देख लो। AD0 to AD15 मिला है। AD0 AD एकदम लगातार जा रहा है, देखो AD14 इधर में है, AD15 मिला है। AD0 to AD15 Yes, sir. Yes, sir. पिन में देखो AD0 to AD15। तो AD0 to AD15 का फंक्शंस क्या है? फंक्शंस यही है, AD0 to AD15 का फंक्शंस यही है। AD0 to AD15 sometime act as a address bus, sometime act as a data bus। टाइम के हिसाब से ये कभी एड्रेस बस के हिसाब से काम करता है, कभी डेटा बस के हिसाब से काम करता है। यही इसका काम है। इसका नाम है AD0 to AD15, दैट्स व्हाई, राइट। कभी कभी ये काम करेगा एज ए एड्रेस बस, कभी कभी एज ए काम करेगा एज ए डेटा बस। ओके, इट्स क्लियर? इट्स क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Same to 8085, राइट। नेक्स्ट, ये जो देख रहे हो A16 से लेकर A19 तक, A16 से लेकर A19 तक, इसका क्या फंक्शन है? A16 से लेकर S3 एंड A19 से लेकर A6, ये इसके साथ मल्टीप्लेक्स रहता है, ये इसके साथ मल्टीप्लेक्स रहता है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस मल्टीप्लेक्सिंग? फंक्शन इज, फंक्शन इज डिफरेंट। फंक्शन क्या है इसका? एड्रेस के हिसाब से काम करेगा और कोई कोई स्टेटस लाइन के हिसाब से काम करेगा, कोई कोई स्टेटस लाइन के हिसाब से काम करेगा। तो स्टेटस लाइन के हिसाब से क्या काम करेगा? ये हम तुमको दे देंगे। कैन यू सी माई स्लाइड? Yes, sir. हाँ, just see S3 and S4. S3 and S4. There is a very important function S3 and S4. S5 and S6 there are not so much of functions, but S3 and S4 is a very very important. S3 and S4 basically we have a 4-segment register. If you can remember, then there is a 4-segment register. Can you recall the segment register? Can you recall the segment register? CS, segment CS, DS, C is SS or ES. SS, and 4 is ES. Yes. Yes. Code segment, data segment, stack segment, extra segment. Yes, sir. Segment, data segment, stack segment, and extra segment. Is it clear? Segment. Code Yes, sir. segment, data segment, stack segment, and extra segment. So अभी कौन सा segment तुम्हारा used हो रहा है? With the help of S3 and S4, you can know which segment you are using. You can know that is the with the help of S3 and S4. Alternative data मतलब extra segment. 01 मतलब stack segment. 10 is nothing but a code segment, and 11 means a data segment. Is it clear? So there are 4 segment. Segment is Data कौन सा segment है? हाँ? Alternate data कौन सा segment है? एक्स्ट्रा सेगमेंट। अब मैंने बोला भी था एक्स्ट्रा सेगमेंट का फंक्शन क्या है। जब डाटा सेगमेंट फुल हो जाएगा तो डाटा एक्स्ट्रा सेगमेंट काम करेगा एज अ डेटा सेगमेंट। सो दिस इज नथिंग बट अल्टरनेटिव डेटा, राइट? Yes, sir. So there are 4 segment and 4 segment. With the help of which segment you are using, you can know that is the help of this S3 and S4. Remember S5 is the function for the status of the interrupt enable flag bit, whether the interrupt is enable or disable. With the help of we can know the flag bit. This flag bit status always display on the S5. So in the status line S5 से हम लोगों को देख के पता चलता है जो whether the interrupt enable flag bit is enable or disable, is enable or disable. It's clear? It's clear to all? Yes, sir.
Yes, sir. Next is nothing but a, S6 is always logic 0. S6 is always logic 0. S6 is always logic 0. Next is a very important, another pin is there. Another very important pin is there. The name is MN/MX bar. Full form minimum mode / maximum mode. Full form minimum mode / maximum mode. When this signal goes low, then Maximum mode. maximum mode will be selected. When this signal goes high, then minimum mode will be selected. When this signal goes low, then maximum mode will be selected. And when this signal goes high, then minimum mode will be selected. कैसे पता चल रहा है सर? जिसके ऊपर बार है एक्टिव इन लो, जिसके ऊपर बार नहीं है एक्टिव इन हाई. Is it clear? It's a very important MN/MX bar. Maximum mode मतलब more than 186 working together. One is a one is a master, another is a slave. And in minimum mode means Only 180. only 18086 can work. That is the difference. So minimum mode and maximum select करने के लिए 33 pin number pin is a very important. Next, coming into the read bar, same and 8085. When this signal goes low, memory read or IO read operations can be performed. When this signal goes low, memory read or IO read operations will be performed. VCC connected with +5 volt, ground connected with a ground. Pin number 1 and pin number 20 are also, as the ground. ठीक है ना? सर हाँ, yeah. सर जैसे अगर राइट बार को हम लोग को यूज करना है मैक्सिमम मोड में, तो हम लोग तो नहीं कर पाएंगे इस केस में. आएंगे सर, आएंगे. मैक्सिमम मोड मिनिमम जब पढ़ाएंगे, इसके अंदर सारा का सारा फंक्शन है. इन तीनों से लेके ये 8 फंक्शन हो सकता है. इन तीनों से आएंगे. आई विल बिकम नो इशू, जस्ट वेट. इसका मैं अभी तक बोला नहीं, पूरा पहले कॉमन वाला कंप्लीट करने दो, उसके बाद हम बोलते हैं. राइट? नेक्स्ट clock is nothing but is an input clock for microprocessor 8086. I have given an input clock, means connected with a crystal with a clock is connected in the pin number 19. NMI and INTR is two another important. NMI is called non-maskable interrupt and INTR is a trap. INTR is another interrupt. INTR is another interrupt which is maskable. So non-maskable interrupt, NMI and INTR, these two are the hardware interrupt. You can say these two are the hardware interrupt. You can say pin number 17 and pin number 18. Pin number 17 and pin number 18. There are two hardware interrupt. One is the NMI and another is a INTR. Okay, which is a maskable interrupt, which is non-maskable interrupt. You know better than me. So I'm not explaining you because I already explained you in 8085. Next, coming into the another very important pin is reset, ready, and test. What is a reset? Remember, reset means in 8085 I already explained you. 8051 I also explained you. Reset means just like a hang. Whenever your machine is hang, we are doing the restart or reset, whatever you can say. What does it mean? Reset करने से क्या होता है सर? जब भी हम लोग reset करता हूं तो उसके बाद क्या आ जाता है हमारा? रीसेट करने के बाद सर all register sets to 0 and your OS will be starting again from the beginning. Your OS will be starting again from the beginning. OS शुरुआत से स्टार्ट होगा एंड फिर से रन करेगा. सो इसलिए रीसेट, the reset condition 8085 के लिए क्या था सर? कौन सा मेमोरी लोकेशन में जाता था प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू? What are the values of program counter? सर 000H था कि 8085 प्रोग्राम काउंटर चला जाता था 0000H.
8086 में एक्चुअली प्रोग्राम काउंटर तो नहीं है इधर। 8086 के लिए प्रोग्राम काउंटर नहीं है। प्रोग्राम काउंटर के जगह में है CS:IP। इन दोनों मिला के जो एड्रेस में जाएगा वो है FFFF0H 4F0H। रिमेंबर दिस लोकेशंस। 8085 में मैंने मेमोरी इंटरफेसिंग कराने का टाइम में बोला था, you know, we are always starting the, by default we are starting the ROM from 0000H. Am I right? Yes, sir. But remember in 8086, ROM always, you know, starting from FFFFH 5FFFH, मतलब ending से ROM start होगा, RAM start होगा beginning से, as vice versa of 8085। मतलब 8085 के हम लोग रिवर्स करते थे, क्योंकि reset condition program counter set at 0000H, but over here program counter set at FFFF0 4F0। that's why we are ROM always starting from the end. It's clear to all of you? It's clear to all of you? सर वन टाइम रिपीट कीजिएगा सर। Reset, you know, to restart or reboot, whatever you can say। machine जब hang करेगा तब हम लोग restart करते हैं। restart करने से microprocessor or whatever the processor you have enter into the ROM or enter into the OS to execute the OS। तो OS execution के लिए 8085 के लिए प्रोग्राम काउंटर चला जाता है 0000H के पास। 8086 में क्या जाता है, CS:IP चला जाता है FFFF0H। FFFF0H। Is it clear? Is it clear? तो ये रीसेट करने के बाद ये आपसे अब चला जाएगा CS:IP मिला के FFFF0। तो जिधर में ROM लोकेशन होगा उधर में ही हम लोग को रीसेट करना था, क्योंकि ROM में हम लोग को OS लिखा हुआ रहता है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या कैसे क्या रन करेगा नहीं करेगा सब बोल देगा। तो इसका भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, जिसको मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हो। तो 8086 के लिए है FFFF0। तो इसमें चला जाएगा। तो इसमें जाने के लिए तुम्हारा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर 8085 हम लोग ROM इंस्टॉल करते हैं 0000H से और RAM इंस्टॉल करते हैं पीछे से। मगर 8086 में जस्ट वाइस वर्सा, इधर हम लोग ROM करते हैं 00000H से एंड RAM कर सॉरी FFFFH से एंड RAM करते हैं 0000H से। ये है 8086 के लिए। 8085 के लिए क्या होगा, जस्ट रिवर्स ऑफ दैट, जस्ट रिवर्स ऑफ दैट। क्योंकि इसका रीसेट कंडीशन में देखो FFFF0 में जा रहा है, इसका रीसेट कंडीशन में 0000H में जा रहा है। ओके, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Clear? Yes, sir. Next, ready just like I always asked you that, is it clear? Is it clear? When you say yes, then I am going into the next topic. If you are saying that sir, repeat once again, or you are not saying anything, that means it is a negative acknowledgement. I am repeat once again. So ready is just like used by the microprocessor to sense whether the slower peripheral, all of you are slower peripheral with respect to me, so whether this slower peripheral is ready to accept the data or not. If is not ready to accept the data, microprocessor wait till it is high. जब तक रेडी सिग्नल नहीं आएगा माइक्रोप्रोसेसर वेट करेगा नेक्स्ट डेटा भेजने के लिए। जब वो रेडी सिग्नल हाई आएगा तो नेक्स्ट डेटा भेजेगा। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes sir. रेडी Yes, sir. सिग्नल से सेंस का सेम एज 8085। 8085 में भी रेडी सिग्नल रीसेट सिग्नल बोथ आर देयर। रेडी सिग्नल मैंने दिखाया था पेन का मुख से एक साथ पूरा फेंकेंगे तो you cannot catch all those things, means you are not ready to accept the one, so how we can catch, right? So basically that's why
Ready signal is used to sense whether the slower peripheral is ready or not. Ready signal ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा, right? Test is a very important pin. Test is a very important pin. Test signal जब तक low होगा तब तक buses और tri-state condition में रहेगा. को दिखाता है. Wait signal के हिसाब से काम करेगा. Input examined by a wait instructions. जब तक रहेगा तब तक buses are tri-state condition में रहेगा, मतलब ideal state में रह जाएगा. The processor remain in ideal state. बस कुछ काम नहीं करेगा, वेट स्टेट में चला जाएगा. वेट इंस्ट्रक्शंस के लिए टेस्ट सिग्नल यूज्ड होता है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर. हमें सर नोट टेस्ट तुम लोगों को दे देंगे. हाँ बोलो. टेस्ट के लिए वंस मोर, भाई सर लिख नहीं पाए. टेस्ट इज यूज्ड बाय द वेट इंस्ट्रक्शन. वेट इंस्ट्रक्शन WAIT. वेट इंस्ट्रक्शन. वेट इंस्ट्रक्शन मतलब माइक्रोप्रोसेसर को वेट करना है. जब तक टेस्ट सिग्नल लो रहेगा तब तक माइक्रोप्रोसेसर विल बी एंटर इनटू द आइडियल स्टेट. आइडियल स्टेट मतलब इस टाइम में कोई काम नहीं करेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए वेट स्टेट में चला जाएगा. माइक्रोप्रोसेसर वेट स्टेट के लिए टेस्ट सिग्नल काम करता है. अभी तक एक पिन छोड़ के सारा बोल दिया है. कौन सा पिन नहीं बोला बोलो तो? कौन सा पिन नहीं बोला? लॉक. है लॉक. लॉक किधर है? DHE. S7 वाला, हाँ, स्टेटस 7. लॉक में तो आता ही नहीं है. लॉक तो अभी तो घुसा ही नहीं है. मिनिमम मैक्सिमम मोड कहाँ घुसे हम? सर QS0 QS1. BHE bar. It's the most 7S DHE bar. most important. ये बहुत अच्छा से सुनना, otherwise you cannot able to understand to read any books or something like that. इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखे. पहला क्वेश्चन है, एक एक मेमोरी सेल में कितना बिट करके डेटा रख सकता है? मैं एकदम फर्स्ट डे ऑफ द क्लास मैंने एक्सप्लेन किया था, एक एक मेमोरी सेल में कितना बिट का डेटा पॉसिबल है, इसीलिए मल्टीप्लाई किया इतना बिट से. याद है तो बोलो. सर जो कांस्टेंट 8 बिट वाला. हाँ, हर एक मेमोरी लोकेशंस में 8 बिट करके डेटा रख सकते हो, उससे ज्यादा भी नहीं रख सकते हो तुम. एक एक मेमोरी लोकेशंस में 8 बिट करके डेटा रख सकते हो. मगर 8086 में एड्रेस बस कितना बिट का है? 20. डेटा बस कितना बिट का है? 16. अभी डेटा बस 16 बिट जो है, इसको दो मेमोरी लोकेशन से लेना है एक साथ, तो एक मेमोरी लोकेशन से तो ले नहीं पाएगा, क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन तो 8 बिट का डेटा रहता है, राइट? तो ये 8 बिट का जगह में जो 16 बिट का जो डेटा का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे काम होता है इसको थोड़ा ध्यान से सुनना. टोटल मेमोरी लोकेशन किधर से किधर है? 00008 से कितना दूर तक जाएगा? F. ये लोकेशन तो लोकेशन जाएगा, राइट? नेक्स्ट ये लोकेशन ना दोनों पार्ट में डिवाइड रहता है इन 8086. इधर में मान के चलो एक लोकेशन है 00000H, तो इधर में होगा 00001H, इधर होगा 00002H, तो इधर में होगा 00003H. सिमिलरली ऐसे चलते रहेगा, तो लास्ट में रहेगा F F F F E H, इधर में रहेगा F F F F F H. ओके, इज इट क्लियर? हर एक मेमोरी सेल है, हर एक में 8-8 बिट करके डेटा रह सकता है. ऐसा हर एक सारा मेमोरी लोकेशन है इसमें.
इज इट क्लियर और नॉट? दोनों पार्ट में रहता है, एक मेमोरी लोकेशन इधर से शुरू होकर इधर जाता है, एक शुरू होकर इधर से इधर जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। इधर में 0, इधर में 1, इधर में 2, इधर में 3, इधर में 4, इधर में 5, इधर में 6, इधर में 7, ऐसे करके इधर में लास्ट जाएगा FFFF, इधर में जाएगा FFFFE। ओके? यस सर। इसका एक नाम है, इसका एक नेम है। यू नो ये नेम का क्या नाम देंगे हम लोग? देखो 1, 3, 5, हर एक देखो ऑड है क्या इवन है? सर ऑड है। ऑड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑड बैंक। इसको हम लोग बोलते हैं ऑड बैंक। ओके? इसमें क्या है सर? इवन। इवन। तो इसमें हम लोग बोलेंगे इवन बैंक। ओके? और एक नाम है सर, एड्रेस के हिसाब से देखा जाए तो ए ज्यादा बड़ा है क्या ये बड़ा है? ये बड़ा है क्या ये बड़ा है? सर ऑड बैंक। ऑड बैंक FF बड़ा है। ऑड बैंक बड़ा है, तो इसका और एक नाम है हाई बैंक। इसका बैंक है लो बैंक। इज इट क्लियर? यस सर। अभी देखो इसके साथ क्या होता है, इधर में 16 बिट का डेटा बस आता है, नाम है D02 D15। इसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसका नाम है यू नो लो बैंक, इसलिए D02 D7। एंड इधर है D8 to D15। हाई के साथ हाई, लो के साथ लो, हाई के साथ हाई, लो के साथ लो। इज इट क्लियर? यस सर। अभी दोनों एक साथ 16 बिट डेटा लेना है तो क्या होगा, इधर से 8 बिट ले लेगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन से 8 बिट ले लेगा। इज इट क्लियर? तुमको 2 16 बिट नंबर रखना है तो 2 मेमोरी लोकेशंस में रखना है, एक मेमोरी लोकेशन में तो 16 बिट नंबर रहेगा नहीं। किधर रहेगा? 000000H एंड 000001H। तो 8 बिट ये बात से ले लेगा, 8 बिट ये बात से ले लेगा, दोनों एक साथ चला जाएगा D02 D15 से। राइट? यस ये सर। ऑटोमेटिक होगा ना सर? ऑटोमेटिकली होगा। तो देखो ये बैंक होने से क्या होता था, प्रॉब्लम क्या होता था बोलो तो? ये डेटा लेने का जो टाइम है ये डबल लग जाता था। ये मेमोरी सेल से इधर लेना, फिर दूसरा मेमोरी लोकेशन से इसको लेना, और उसमें क्या हो जा रहा है, एक ही टाइम में इधर से इधर शिफ्ट हो जा रहा है, इधर से इधर शिफ्ट हो जा रहा है, दोनों एक साथ चला जाएगा। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर क्या? प्रॉब्लम इसमें होगा कि सर पहले बनाओ? क्या प्रॉब्लम? पहले टाइम लग जाता था ज्यादा, इसमें टाइम सेव हो जा रहा है। इसमें टाइम सेव हो जा रहा है क्योंकि हम दोनों एक साथ पूरा करते थे तो दोनों 2 बार लेना पड़ता था। एक ही मेमोरी लोकेशन से लेंगे, उसके बाद दूसरा मेमोरी लोकेशन से लेंगे, क्योंकि डेटा बस तो एक ही है, उसको हम लोग दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को कर दिया D02 D7, एक को कर दिया D8 to D15। अभी चाहेंगे 16 बिट तो इस मेमोरी लोकेशन से 8 बिट जाएगा, इस मेमोरी लोकेशन से 8 बिट जाएगा, दोनों मेमोरी लोकेशन कंसेक्यूटिव है, अलग अलग से ले लेगा, इसके एक साथ भेज देगा। क्लियर? यस सर। अभी कौन सा बैंक से कब डेटा लेगा, इसके लिए एक चीज है, हाई बैंक के लिए CS बार है। ये CS बार और CE बार जो भी बोलो, ये कनेक्ट होता रहता है BHE बार के साथ। BHE बार फुल फॉर्म बास हाई एनेबल, फुल फॉर्म बास हाई एनेबल, मतलब
हाई बैंक को एनेबल करने के लिए BHE बार यूज होता है। इसमें 0 होगा तब ये बैंक सिलेक्ट होगा, राइट। सिमिलरली इसके साथ रहता है A0, एड्रेस बस का A0। A0 0 होने से सर सर कॉपी नोटबुक नहीं दिख रहा है। वीडियो शो नहीं कर रहा। जल्दी क्या हो ना, चार्ज खत्म। देखता है कितना देर तक चलता है। A0 जो है, A0 के साथ तुम्हारा कनेक्टेड है लो बैंक। A0 0 होने से लो बैंक सिलेक्शन होगा। A0 मतलब एड्रेस बस से आया है लोएस्ट बिट, एड्रेस बस का लोएस्ट बिट है। अभी ये भी एक बात है, इधर में जितना सारा नंबर है, क्या नंबर है सब? इवन कोई भी एक एड्रेस बताओ, इसके अंदर कोई भी एक एड्रेस बताओ। 00006 00006 00006 नहीं ले रहा है, ABC56 तुम्हारा 6 ही लिया, मगर ABC56। ओके, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1010 1011 1100 1100 0 0101 0110। ये है A0, ये है A19। अभी बोलो A0 क्या है? सर A00 है, यानी लो बैंक सेलेक्ट होगा क्या? 0 है, 0 होना ही पड़ेगा। कोई भी इधर में एड्रेस हो उसका A0 तो 0 ही होगा पक्का, क्योंकि यस सर। इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए A0 ऑलवेज शुड बी 0। एग्जांपल दिया तुम लोगों को समझाने के लिए। कोई भी इवन नंबर लो जिसका you are converting into the binary, you will be get the 0 in a A0 always. There is a no change. It's clear to all of you? यस तो सर। सर एक दूसरा नंबर लीजिए तो सर। बोलो बोलो, नंबर बताओ। समीर नंबर बताओ। हमले हेलो। हाँ समीर बोलो। F F F F F 33। 33। यस 3 तो 3 इधर होगा नहीं सर। रेंज से तो ऊपर जा रहा है क्या? ना लास्ट में तो इवन बैंक का नहीं रहेगा वो। इवन बैंक का नहीं रहेगा ना। इवन बैंक होने से तो इधर इवन नंबर होना पड़ेगा ना लास्ट में। अच्छा, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। लास्ट में तो इवन नंबर होना चाहिए ना। इवन बैंक ही है। देखो 0 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके जाएगा ना। ओके सर। इवन नंबर कुछ भी लो तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो तो उसमें A0 0 ही आएगा तब तो 0 ही आएगा सर। और 0 ही आएगा। It's clear to all of you? यस सर। यस सर। इससे प्रॉब्लम कर रहा है। तो BHE बार एंड A0 का एक टेबल बनता है। क्या टेबल बनेगा? BHE बार ऑब्लिक S7 जो भी है, BHE बार एंड A0 0 0 होने से क्या होगा? कौन सा बैंक? कौन सा बैंक है? सर बैंक 0 इवन ऑड वाला है ना? हाँ इवन ऑड वाला।
सर even दोनों 0 0 होने से क्या होगा? इवन इवन ना होगा सर इसमें। हाँ सर इवन बैंक सिलेक्ट होगा सर इवन इवन बैंक बैंक सिलेक्ट होगा इवन बैंक सेलेक्ट होगा। और बैंक क्यों नहीं होगा? और क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि ये 0 0 है। ये 0 0 है तो क्या हुआ? दोनों बैंक तो सिलेक्शन होगा, बैंक तो सीएस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ये तो बीएचई बार कनेक्टेड है। तो BHE बार BHE बार से कनेक्ट होगा। हाँ ही तो हो जाए। बीएचई बार भी तो 0 होगा तो ये भी तो ऑन हो जाएगा ना, ऑड बैंक। हाँ या ना? ऑड बैंक स्टार्ट नहीं हो रहा सर 0 0 से 0 0 से स्टार्ट हो और ना हो, इधर से भी डेटा जाएगा, इधर से भी डेटा जाएगा, दोनों से डेटा जाएगा जब 0 0 है, क्योंकि ए भी ऑन है, ए भी ऑन है, तो दोनों एक साथ ऑन हो जाएगा। दोनों एक साथ ऑन होगा। बोथ द बैंक विल बी एक्टिव, both the bank, मतलब two bank, odd bank and even bank both are selected, high bank and low bank both are selected. Okay यस सर सर 0 1 होने से क्या होगा? ऑड बैंक सेलेक्ट ऑड बैंक सिलेक्ट होगा odd bank select होगा। सर 1 0 होने से क्या होगा? सर इवन इवन बैंक। बैंक सर 1 1 होने से क्या होगा? नीदर। कोई दोनों भी नहीं बैंक होगा। सिलेक्ट नहीं होगा, कोई भी बैंक सिलेक्ट नहीं होगा। Okay, it's clear to all of you? यस सर Yes, sir. It's very important, BHE bar. Okay, next coming into the minimum mode of operation, that is hold HLDA, right bar, M oblique IO bar, DT oblique R bar, DEN bar, ALE and INTA bar. What are the functions of ALE? तुम लोग बोलो, हम सुनते हैं। सर वो एड्रेस और डाटा बस को डीमल्टीप्लेक्स करने में हेल्प करता है। हाँ बोलो। सर एली जब हाई होता है तो वो एड्रेस बस की तरह एक्ट करता है, अगर 0 होता है तो डाटा बस। ये डीमल्टीप्लेक्स कम करने के लिए यूज्ड होगा। एएलई जब हाई रहेगा तब एड्रेस बस के हिसाब से काम करेगा, अदरवाइज इट मे बी इन अ डेटा बस, नॉट डेटा बस, इट मे बी इन अ डेटा बस, राइट? yes परफेक्ट डेटा बस नहीं है। अच्छा, एएलई का एकदम उल्टा बोलेंगे, एकदम उल्टा तो क्या होगा? ऐसा हम बोल सकते हैं, whenever this signal goes low, then data bus will be selected. Whenever this signal goes low, then data bus will be selected. Otherwise, address bus may be selected, may not be. हम बोल सकते हैं कि नहीं? ALE का जस्ट ऑपोजिट। हाँ, जस्ट अपोजिट, यस सर। वही है डेन सिग्नल का फंक्शन। डेन का फुल फॉर्म है डेटा एनेबल। ALE सिग्नल एड्रेस के लिए यूज्ड होता है, डेन सिग्नल डेटा बस के लिए यूज्ड होता है। इज इट क्लियर? डेन सिग्नल डेटा बस के लिए यूज्ड होता है, डेटा डेटा स्टोर करने के लिए यूज्ड होता है। सो डेन बार इज टू whenever this signal goes low, then data bus will be selected from multiplex address oblique data lines. Is it clear to all of you? It's clear to all of you? यस सर सर। डेन का क्या बताए सर फुल फॉर्म? डेटा बस इनेबल Data enable. और डेटा Data enable. Full form is data enable. डेटा बस कौन सा साइड में जाता है एरो बस का? सर दोनों डायरेक्शन में रहता सर है। Wow, very बाय good, very good. Bidirectional arrow. मतलब it can be transmit, it can be received, right? yes It sir can be transmit from microprocessor, it can be received into the microprocessor. Am I right? Data Yes, sir. bus का काम ही है, डेटा जा भी सकता है, डेटा आ भी सकता है। Am I right? नो हाँ या ना? यस सर। इसीलिए DT oblique R bar, data transmit oblique received. Whenever this signal goes low,
data will be received. When the signal goes high, data will be transmit. Data transmit when the signal goes high. Data High. received when the signal goes low. Okay, 3 हो गया. अभी नीचे वाला बोल देते हैं, नहीं तो नीचे वाला छूट जाएगा. INTR. It's a, मैंने बोला था ना, चॉकलेट दिया था किसको जिसका प्रायोरिटी कम है. INTR का एक्नॉलेजमेंट सिग्नल इज INTA बार, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल. व्हेन दिस सिग्नल गोज लो, मतलब INTR को बोला तुम्हारा क्वेश्चन हमको मिला, तुम्हारा इंटरप्ट हमको मिला, आई विल बी डेफिनेटली कमिंग इन योर क्वेश्चंस और डेफिनेटली आई विल बी गिव योर आंसर like a acknowledgement of INTR. It's a INTA bar. Okay, it's okay. Is it clear to all of you? सर INTR का एक्नॉलेजमेंट हो गया. हो गया. उसमें क्या होता था कि माइक्रो प्रोसेसर मतलब इससे पता चलता था कि उसका प्रायोरिटी क्या है, मतलब लीस्ट. ना प्रायोरिटी क्या ना, उसको हम लोग बोले थे जे INTR इन 8085 सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है, इसके लिए मैंने उसके इस पे एक्नॉलेजमेंट दिया था. बात ऐसा तुम लोग को एक स्टोरी बोले थे, बट यू नो इन जनरल एक ही इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट होता है, सारे इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है. जैसे INTR का एक्नॉलेजमेंट उधर भी था, INTA बार 86 में भी ऐसा ही है. INTR का एक्नॉलेजमेंट है INTA बार. ओके सर. AIO बार, ये तुम लोग पढ़े हो 8085 में. 8085 में क्या पढ़े हो, इसमें क्या पढ़ना है बोलो. 8085 में ऐसा ही कुछ पढ़े हो. सर जब लो रहेगा तो 8085 में नाम क्या था बोलो पहले. क्या ये सर, पिन का कौन नेम सा? क्या था. AIO बार. सर इनपुट आउटपुट मेमोरी. हाँ, इसका नेम क्या था पहले बोलो. ऐसा ही था, AIO बार ही था. नहीं, पहले था सर IO था, फिर था M बार. हाँ, IO/M बार था. इधर जस्ट रिवर्स ऑफ द 8085. इधर AIO बार, इधर AIO बार. पहले था IO/M बार इन 8085. 8086 में है AIO बार. तो इसमें क्या फंक्शन है, whenever this signal goes high then memory operations will be performed, when this signal goes low then input output operations will be performed. Is it clear? When this signal goes low then input output operations will be performed, when this signal goes high then memory operations will be performed. ओके सर. Okay, next write bar. I'm not telling about the write bar. Write bar, when this signal goes low, memory write or IO write operations will be performed. When this signal goes low, memory write or IO write operations will be performed. When this signal goes low, memory write or IO write operations will be performed. Is it clear? It's clear to all of you? सर एक बार Yes, रिपीट. When this signal goes low, then memory write or IO write operations will be performed. That is the function of write bar. When this signal goes low, memory write, ऊपर में बार है मतलब एक्टिव इन लो सिग्नल. तो जब ये लो रहेगा तब राइट ऑपरेशंस कम करेगा, इधर मेमोरी राइट और IO राइट. नेक्स्ट होल्ड एंड HLDA. क्या फंक्शन है होल्ड एंड HLDA? बोलो. इन 8085 सेम एज ओवर हियर. सर मेमोरी और इनपुट आउटपुट को डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए. नो सर, DMA का कोई फंक्शंस है इधर. सर DMA रिक्वेस्ट करता था कुछ. हाँ, होल्ड सारा मतलब एक्सटर्नल DMA बस रिक्वेस्ट. DMA नेक्स्ट मतलब साइकिल क्या बजाने है? के लिए. DMA का फंक्शंस क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. जैसे मान के चलो अभी अभी हमारा DMA कंट्रोलर है शालिनी मैडम. ओके, क्यों बोलो तो. बोलो तो क्यों.
सर क्योंकि सर आप लिंक भेजते हैं शालिनी मैम को और मैम हम लोग को भेजते हैं। हाँ, कोई भी क्वेश्चंस होता है तुम लोग शालिनी मैडम को करते हो, शालिनी मैडम हमको करता है। तो शालिनी मैडम यू नथिंग बट अ डीएमए कंट्रोलर ऑफ मी। कोई भी डेटा कम्युनिकेशन हो, मान के चलो कोई एक बोला जो सोनम ने बोला सर अंकिता के पास एक लैब कॉपी है, वो हमको चाहिए माइक्रो प्रोसेसर को, तो शालिनी मैडम हमको बोलेगा कि नहीं? नहीं। बोले क्यों बोलेगा? शालिनी मैडम अंकिता कैसे लेगा और सोनम को दे देगा, बस बात खत्म, जुगाड़ करके दे देगा। तो एक्चुअली देखो हमारा एब्सेंस में भी ये लैब चल रहा है, क्लास चल रहा है कि नहीं? दिस एक्टिविटी। और क्लास करने का किसका मन लगता है? अभी हम क्लास करना जाएंगे शालिनी मैडम के बिना, तो तुम लोग शुरू कर दोगे जे सर एक्चुअली कल ना हमारा तो थोड़ा क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सर कल तो हमारा नींद खुलेगा नहीं, आज रात में बहुत लेट में सोएंगे, तो बहुत बहाना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये जो पूरा है वो शालिनी मैडम को मैंने जिम्मा दे दिया। तो शालिनी मैडम इज जस्ट लाइक ए वर्किंग एज ए डीएमए कंट्रोलर विद रिस्पेक्ट टू मी। सारा डेटा कम्युनिकेशंस मैडम करेगा। I am doing the programming and all. I am doing the teaching and all, nothing else. Right? Next, HLDA. What are the functions of HLDA? Acknowledgement. शालिनी मैडम पहले हमको रिक्वेस्ट करेगा, सर give your link. I will be tell about that, sir, madam, I will be given with the 2 minutes, or I will be given a half an hour. I will be given a 30 minutes. Means this is acknowledgement. Hold, and this is acknowledgement. Hold acknowledgement. Right? Is it clear? Is it clear to all of you? It's clear. Yes, sir. Can I proceed for the next? अच्छा, कल और 10 नंबर वाला क्या फंक्शन सबको बता दिया था? ये अंकिता नहीं तो सोनम कुछ कोई ना कोई किया है जो 10 नंबर देने वाला था। नहीं सर, हमने कोई ना कोई तो बताया, नहीं ले 13 से 17 18 कैसे हो गया? एक दिन में तुम बहुत अच्छा पढ़ने लग गया, ऐसा तो नहीं है, है ना? Next is a maximum mode. In maximum mode में पहला क्या है? कौन मास्टर बनेगा, कौन स्लेव बनेगा? Actually all are in a master, in a same category. मतलब say if I am talking about the I am taking this class with the help of Shalini madam, with the help of your Saptarshi sir, with the help of your Sangita ma'am, right? We are 4 people taking this class. तो जब हम बोलेंगे वो लोग भी बोलेगा, तो क्या होगा? एक साथ कुछ समझ में आएगा तुम लोगों को? नो सर। नो नो सर। सर। तो एट ए टाइम तो एक ही फैकल्टी को बोलना है ना, बाकी सारा फैकल्टी को सुनना है। Yes, sir. तो क्या किया जाएगा? मान के चलो अभी हम बोल रहे हैं, मैडम को कुछ बोलना है, शालिनी मैडम को बोलना है जब कल तुम्हारा कॉलेज छुट्टी रहेगा ड्यू टू दिस रीजन, तो मैडम क्या कहेगा? पहले हमको रिक्वेस्ट भेजेगा सर प्लीज leave your session so that I can explain something better, or I can explain the different topic or something like that. Is it clear? Yes sir. So next जो माने you know next जो काम है RQ/GT0, these two are the request. RQ is a request and GT is a grant. पहले रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद उसी पिन से हम ग्रांट कर देंगे। शालिनी मैडम हमको रिक्वेस्ट करेगा, हम उसी पिन से ग्रांट कर देंगे जो नाउ आप तुम कर सकते हो। जब कर सकते बोल देंगे तो मैडम अभी पढ़ाते रहेगा, जब छोड़ेगा तब फिर हम बिकम ए टीचर बन सकते हैं, नहीं तो उतना देर तक शालिनी मैडम ही पढ़ाते रहेगा। कैसा सिग्नल होता है?
दोनों के ऊपर बार है। देखा, ऐसे पहली बार कोई सिग्नल देख रहे हो जिसके ऊपर दोनों के ऊपर बार है। सिग्नल होता है जस्ट लाइक दिस वन। Yes, sir. One clockwise pulse. सर जब This is दोनों एक्टिव RQ. लो होगा तो दोनों ऑन हो जाएगा। हाँ, सुनो अभी देख लो ना, दिस इज RQ बार एंड दिस इज GT0 बार। रिक्वेस्ट मतलब ये पहले रिक्वेस्ट करेगा, ये दिस इज रिक्वेस्ट करेगा 1 clockwise पल्स, उसके बाद सम टाइम बाद इट विल बी ग्रैंड। सो रिक्वेस्ट एंड ग्रैंड समथिंग लाइक दैट। इज इट क्लियर? सर रिक्वेस्ट एंड ग्रैंड मतलब शालिनी मैडम हमको Grant, रिक्वेस्ट okay. करेगा, हम ग्रैंड करेंगे। एक ही पिन है। जैसे शालिनी मैडम एक लो क्लॉकवाइज पल्स देगा, मतलब शालिनी मैडम हमको रिक्वेस्ट किया, कुछ देर बाद मतलब जितना जल्दी हो सके हम हमारा काम खत्म करके हम ऐसा एक पल्स देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे GT0। उसी पिन से ही हम देंगे शालिनी मैडम को, मतलब दिस पिन इज ए वाइस बोथ डायरेक्शन। शालिनी मैडम को पता चल जाएगा, मतलब सर अभी ग्रैंड कर दिया, अभी हम बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो एक मास्टर को मतलब दो प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट कर सकता है। एक ही काम है, RQ/GT0 और RQ/GT1, दोनों रिक्वेस्ट उसके पास आ सकता है, दोनों रिक्वेस्ट उसके पास आ सकते हैं, मगर हाईएस्ट प्रायोरिटी रहता है RQ/GT0 को विद रिस्पेक्ट टू RQ/GT1। RQ/GT0 का हाईएस्ट प्रायोरिटी रहता है विद रिस्पेक्ट टू RQ/GT1। ये जो पढ़ा रहा था BHE A0 RQ/GT0, इंटरेस्टिंग है कि नहीं? सर मतलब दो रिक्वेस्ट आएगा जिसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसका है RQ/GT0 का हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, उसको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसके बाद RQ/GT1। एक साथ दोनों रिक्वेस्ट हमारे पास आ गया, हम किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको छोड़ेंगे? शालिनी मैडम भी किए हैं और मान के चलो कौन संगीता मैडम भी ने किया है, तो किसको हम देंगे? जिसके पास RQ/GT0 से आया है उसको हम देंगे। ठीक है ना? ओके सर। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग था कि नहीं? BHE A0 सब इंटरेस्टिंग था ना? यस सर। तो हमारा बहुत खराब लग रहा है, मैडम लोग हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं बास छाड़ो, रिक्वेस्ट ग्रैंड, ये सब हमको करना ही नहीं है। इसीलिए मैंने लॉग बार को ऑन कर देंगे। लॉग बार एक बार ऑन कर देंगे, इसको लो कर देंगे, तो कोई भी रिक्वेस्ट हमको कर नहीं सकता है। हम जब इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आ रहा है तो शालिनी मैडम, संगीता मैडम कोई भी रिक्वेस्ट हमको कर नहीं सकता है। इसके लिए हम लॉग बार है, लॉग बार हम दे देंगे लो सिग्नल, तो कोई हमको रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है। सर ऊपर का दोनों फिर डिसेबल हो जाएगा? डिसेबल हो जाएगा, हमारे लिए डिसेबल हो जाएगा। अभी कोई काम नहीं होगा, अभी सिर्फ हमारा ही काम होगा। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द इंटरेस्टिंग टॉपिक ना, तो हम अभी उसको छोड़ देंगे तो अभी तो बीच में कट जाएगा, तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना तुम लोगों को। क्लियर? लॉग बार इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर जब Yes, लॉक sir. लो होगा तब ना? तब लो होगा, तो कोई भी प्रोसेसर, कोई भी मास्टर प्रोसेसर, कोई अदर 8086 कैनॉट बी रिक्वेस्ट टू मी टू ग्रैंड द ऑल द एक्सटर्नल बासेस एंड ऑल। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्यों? जो बास है हमारा, जो ये है, हमको अभी म्यूट में जाना है, मतलब हमारा जो वे आउट है, जो हम बात कर रहे हैं, सारा को सारा बंद कर देना है। अभी शालिनी मैडम ऑन करेगा, हमको सारा ऑफ करके सुनना होगा। तुम लोग जैसे सुनते हो, रेडियो चला के सो जाते हो, ऐसा ही। आइए ना? नो सर। Oh, no, sir. Is it clear? Yes, sir. QS0 and QS1. बोलो, किसी का कोई क्वेरीज है? किसी का कोई क्वेरीज है? No, sir, clear. QS0, QS1, this is nothing but a Q status. Q status 00 होगा तो नो ऑपरेशन। Q मतलब 6 बाइट लॉन्ग क्यू है ना हमारा, ये आर्किटेक्चर में देखे थे हम लोग। फास्ट बाइट ऑपकोड फ्रॉम द क्यू, एक बाइट क्यू से हम लोग अभी ऑपकोड किए हैं।
10 मतलब एम्प्टी क्यू, क्यू में कुछ नहीं है। 11 मतलब सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम द क्यू, मतलब क्यू में सब्सिक्वेंट बाइट है। यू नो देयर आर सम डेटा देयर टू decode and execute. First, you know, after the fetching, all the data stored into the queue in 8086. So these data, you know, coming into the execution unit one by one. So subsequent byte from the queue, 111, whenever it is a 11. It's clear? नो सर, एक बार रिपीट कर दीजिए ना। क्यू है ना हमारा, क्यू 6 बाइट लॉन्ग क्यू। सर कहाँ से, मतलब कौन सा क्यू? आर्किटेक्चर में क्यू था एक 6 बाइट लॉन्ग क्यू, मैंने समझाया था। बीआईयू का पूरा डेटा, आर्किटेक्चर का पिक्चर ना दिखाते हैं, वो भी है। ये आर्किटेक्चर का पिक्चर याद है? हाँ, ना किसी का याद नहीं है? यस सर, आ गया याद। ए है, देखो क्यू, इंस्ट्रक्शन बाइट क्यू ऑफ 6 बाइट। इसमें डेटा है कि डेटा नहीं है? इसमें अभी फर्स्ट बाइट मतलब फेच किया है कि नहीं किया है, सब्सिक्वेंट बाइट है कि नहीं है, ये समझने के लिए QS0 एंड QS1 यूज्ड होता है। QS0 एंड QS1। तो जो अदर प्रोसेसर्स है ना, उसको पता चलता है जो whether he have some work or not, क्यू स्टेटस से, जो whether you know the other processors से हम काम कर रहा था, हमारा क्यू में तो फुल रहेगा डेटा, क्योंकि हमें पढ़ा रहे, अभी हमारा खत्म होने जाएगा तो क्यू भी धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। तब मैडम लोग भी पता चलेगा कि सरकार पढ़ाने का कुछ है नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीट। सो आई कैन टेक द कॉल, आई कैन टेक द यू नो कंट्रोल to teach the students. So that's why QS0 and QS1 is used. 00 means no operation, 01 means first byte opcode from the queue, 10 means empty queue, 11 means subsequent byte from the queue. It's clear to all of you? सर यहाँ नो ऑपरेशन और एम्प्टी क्यू में अंतर क्या होगा? हैं? नो ऑपरेशंस मतलब अभी कोई ऑपरेशंस कर नहीं रहा है, मगर क्यू में क्या है, डेटा है नहीं है, वो अलग बात है। क्यू में शायद डेटा है फील्ड, मगर हम कोई काम नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हैं, राइट? यस सर। और एम्प्टी क्यू मतलब क्यू में कुछ है ही नहीं, वो क्या एग्जीक्यूट करेगा? ओके सर। ये जो 6 बाइट लॉन्ग क्यू जो बोला था मैंने, वही है, ठीक है? इधर लिखा हुआ है, मैंने ये पूरा नोट्स तुम लोगों को दे देंगे। ये बुक का है, हमारा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, और क्या है? QS0 QS1 हो गया, RQ/GT0, इट्स डन। टेबल तो और होना चाहिए था। BH bar and A0, okay? Whole word मतलब 2 bytes, or you can say both the bank. S0 S1 S2 इसका भी एक फंक्शंस है। इसका भी नहीं देख रहा है, हम बोल देते हैं। You know, in these three pin actually work all the operations. 000, then hold 0001, then you know HLDA. 010 means write operations. All are done with the help of these three. The 3 is a combination of these 3. All the 8 operations can be performed. Write bar,
DT oblique R bar, DEN, interrupt acknowledgement, all are done using S0, S1 and S2. Okay, I will be given the notes, then you will be get it. What are the functions? Next, pin configuration, we are almost complete. Next, we will be coming. We'll be coming into the other different chapter. Okay, whatever the done today in configurations, tomorrow I will be explain some program. I think in after that nothing will be there, and I will be explaining you some 8051 program also afterwards, and then it will be complete. What are the syllabus is there? I'm just check it. 8086 architecture, pin diagram, 8086 description of the various signals, complete today. Architecture block diagram, 8086 description of sub blocks such as EU and BIU and of various registers, complete. Description of address computation, memory segmentations, already done. Address कैसे निकालता है 20 bit का address मैंने बोल दिया, am I right? Yes. And memory segmentations and addressing mode and instruction format. Instruction format, not instruction nahi bola. Addressing mode, tomorrow I will be explain the 12 addressing mode. Okay, 12 addressing mode I will be explained tomorrow, and some instruction is there. I think another 2 to 3 class I am complete all my syllabus. Whenever your exam, any date is given? 10 April. 10th April starting. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Another, I think before 20 days, I will be complete my syllabus, so you can easily take the call. And after that, if you feel that you have any kind of queries or something like that, you come with the queries. You can contact me individual level, or you can contact in a class. You conduct a class. I will be again come up, and if you have any queries, so everyone can listen. That what are the queries and whatever the answer. Okay, I am ending my class today. Again, we will be meet tomorrow 2 p.m. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Most welcome. Thank you, sir.